Ram Navami Day also, the Saturday also we are having classes. That is how we are enjoying our holidays with the classes. A lot of discussions in addition to economics. Okay, let me start the main issue, that was Human Development Index. I hope it is visible. Yes, sir. Okay. Okay. Now, yesterday we discussed basically the main issue was the structure of Human Development Index is 3 dimensions and 4 indicators, and very brief meaning of each indicator. And I also kept mentioning that how these indicators are little different from earlier indicators, but basic structure has not changed. Means same 3 dimensions, again 4 indicators, but certain amendments in indicators, and what were the reasons I have discussed in detail. Now, question is, how do we measure the HDI? Sometimes questions are asked, how HDI is measured. As this question was asked some years ago in the IS mains, general studies, what do you mean by HDI, how it is measured? 150 words. Now, let us have a brief idea of its measurement. You understand that dimension of life, which has the indicator, one indicator, that is life expectancy at birth, that is measured in the scale of years. Second dimension, education, 2 indicators and measured in the scale of years. Means all 3 indicators are measured in terms of years. But the third dimension, income, with indicator per capita GNI, it is measured in terms of dollar. Now the question is, how can you convert all these measurements into one single index? Because the problem is that out of 4 indicators, 3 are measured in years, but 1 is measured in dollars. Then you cannot add years and dollars together to arrive at the value. It is not possible because they are 2 different scales. One is in terms of money, other in terms of years. But on the basis of these 4 indicators, we have to measure the HDI. We have to arrive at a single value of the index for different countries. So let us see how this measurement is done and how these indicators measured on different scales are converted into indicator values in terms of index. Means life expectancy in birth, which is in years, for every country, it will have to convert it into an index value for that indicator. Means we have to eliminate years, we'll have to eliminate dollars, because index value, whenever you see any index value, there is no scale is used, like kilogram, meter, liter, dollar, they are not used. Simply a numerical value is that reflect the index value. Index value is not expressed in terms of any other
symbol. No prefix, nothing. For example, you must have gone through index number in BA1. That is a simple part of third paper. So I believe that you have gone through that, you know meaning. Or to be very practical, every day you come across the news of stock market in India, value of Sensex and Nifty. Whenever you read, suppose Sensex, it will say the Sensex has increased by so and so point, and it has reached 60,100. Now it is not mentioning 60,100 rupees or dollar or kilogram, nothing. A simple number, because it is index number. And in any change in that particular number will indicate the change in that particular area or that particular subject. Whether it is stock market, whether it is price index. Suppose you measure inflation, it will always say there is suppose a 4.5% increase in inflation rate, and the index has increased from 250 to 255, like that. They will not say rupees or so and so. Therefore, if you understand that background and look at this HDI, now our question was that out of 4 indicators, 3 are measured in terms of years for each country, and 4th is measured in terms of dollar for each country. But since we are talking about index, we cannot express the index in years or dollars. Therefore, the first step is to convert these values of 4 indicators into index values that I am coming to second part. Now I have mentioned again there are 3 dimensions. Life, mean years of schooling, expected schooling, and income. Now, how these values are converted into index values? For that, what has been done? See next 2 columns. First column is maximum value, and second column is minimum value. The maximum value for all those 4 indicators are observed maximum. Observed maximum in the time series starting from 1980 till date. Observed. Now, make it very clear. What do you mean by only this column maximum? Don't discuss minimum right now. Just think about maximum value. Maximum value means, for example, say any one point, say life expectancy at birth. It means this is assumed as observed value in the time series 1980 till date. Till date means the recent value. Suppose there are 3-4 countries, and we are observing the value of life expectancy in all these countries starting from 1980 till date. Out of these 4 countries, during this time span,
Right now, it is 40 years of time span. It start from 1980 till date. Any country must have observed the maximum life expectancy during this time duration, that is 40 years. Because every country will have different value of life expectancy in this time series. Out of all those values, we pick one value which has been observed as the maximum value for all the countries. Same is observed mean year of schooling, same is for expected schooling, same year for per capita GNI. Now tell me, do you have any problem in understanding this issue? What is observed maximum? If you have any question, just tell me. Any question from your side? Are you able to hear me or not? Yes sir. Yes सर sir. बहुत सारी Yes, sir. पर कैपिटा इनकम सर हाँ, बताइए, $100 कोई से सवाल हो इसमें? Yes. अब प्लीज डोंट सी मिनिमम, जस्ट कम टू, मैंने बोला आपसे पहले मैक्सिमम सोचिए, आप क्यों जंप ओवर कर रहे हैं और कंफ्यूज जाएंगे? पहले मैंने बोला कि आप मैक्सिमम वैल्यू पर बात कीजिए, फिर मिनिमम पर आते हैं, तभी आपको समझ में आएगी बात। ये मेरे ख्याल से बात समझ आएगी मैं क्या कह रहा था यहाँ पर। कि जो पहला इंडिकेटर है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, हर देश की जीवन प्रत्याशा जन्म के समय अलग अलग होगी। अगर हम 1980 से लेकर वर्तमान समय तक प्रत्येक देश की जीवन प्रत्याशा की वैल्यूज को देखें तो इनमें से कोई एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जो अधिकतम वैल्यू रही हो किसी वर्ष किसी देश के लिए। बात समझ आई कि नहीं? तो हम Yes, sir. हम उस वैल्यू को पिक करेंगे कि ठीक है, ये वैल्यू जो है, मान लीजिए सपोज हमने सब देशों के लिए डेटा देखा और कहा भाई कंट्री जेड का फला साल में मैक्सिमम वैल्यू देखा गया 70 इयर्स और किसी भी देश में किसी भी वर्ष 70 इयर्स नहीं टच किया था। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट 70 इयर्स वाज मैक्सिमम फॉर दैट कंट्री in that year. That country can be Z, that country can be X, that can be B or any country. किसी भी देश में जहां पर मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया हो वो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू। सेम मेथड होगा सारे इंडिकेटर्स के लिए, एजुकेशन के लिए भी, इनकम के लिए भी। पहले बताइए कि ये बात क्लियर हुई या नहीं? एकदम क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now you come to next column, minimum value. In minimum value, it is little different. For minimum value for life, it is conceived. ये ऑब्जर्व नहीं है, इसे कंसीव मतलब है इसे मान लिया गया है कि 20 वर्ष न्यूनतम हो सकती है, इससे कम आयु नहीं होगी। ऑब्जर्व्ड देखा गया है या पाया गया है, जबकि न्यूनतम माना गया है। इट हैज बीन कंसीव 20 इयर्स, हालांकि किसी भी देश का 20 इयर्स है नहीं, बट इट हैज बीन कंसीव दैट दिस इज इन द वर्स्ट सिचुएशन, इट इज द मिनिमम पॉसिबल इयर्स ऑफ एज, एवरेज ईयर, दैट इज 20 इयर्स। बात क्लियर हुई? कंसीव्ड और ऑब्जर्व में क्या अंतर है? Yes, sir. Then come to education. Education में for both the indicators, it has been conceived that mean years of schooling 0 year is possible in worst situation. हालांकि किसी देश का है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए कंसीव कर लिया गया, मान लिया गया
कि the value minimum for these two indicators can be zero. So conceived is zero for both indicators. Is it okay? Conceived zero? Yes, sir. Yes, sir. Because life cannot be 0 years. But schooling can be 0 year. It is possibility. Although it is not actual, but possibility is there. But life cannot be 0 years. It is impossibility. इसलिए वहां पर कंसीव किया गया 20 years, यहां पे कंसीव किया गया 0 year 0 year, एंड इनकम कंसीव किया गया वर्स्ट सिचुएशन में इनकम कैन बी $100, किसी का है नहीं, लेकिन कंसीव किया गया इससे कम तो होगा ही नहीं. तो 2 values minimum have been conceived for life and income as 20 years and 20 and 10, whereas for education it is 0. Now tell me whether minimum value column is clear or not. ये स्पष्ट है सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now you come to last. अब यहां पर है एक्चुअल ऑफ द कंट्री. हर देश की लाइफ का एक्चुअल वैल्यू कुछ होगा, एजुकेशन के एक्चुअल वैल्यूज कुछ होंगे, और इनकम के एक्चुअल वैल्यू कैसे होगा. यानी जिस समय आप इंडेक्स बना रहे हैं उस समय का एक्चुअल वैल्यू किसी भी कंट्री का क्या होगा, तो हर कंट्री का अलग होगा. सपोज देयर आर 5 countries, every country will have a different actual value of life. Every country will have actual value of education. Every country will have actual value of income. तो एक्चुअल तो हर साल चेंज होगा, हर कंट्री का चेंज होगा, और हर कंट्री का अपना वैल्यू होगा. बट मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू विल बी फॉर ऑल द कंट्रीज measured or included under the index. Now tell me whether this table is very clear or not. If it is clear, then we'll just simply convert all these values into index values and come to the conclusion of how SDI is composed or is measured. कोई भी डाउट हो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए. Sir, why is life expectancy at birth is exact 20 years? Because it has been conceived that minimum you have assumed that it cannot be less than 20. Assumed. किसी देश का है नहीं. मैंने क्या कहा? मैंने कहा they have assumed that 20 years can be the minimum in the worst situation, although no country has minimum, no country has average lifespan of 20 years and expectancy. No, it has been conceived. Now what was your question? Please repeat again. Sir, why is life expectancy at birth is assumed 20 years? Why 20 years? Why 20 years? Okay. Whenever you ask such questions, then I enjoy. And your question has drifted me to some other area. Let us have a break from economics for 5 minutes. Okay? Break from economics for 5 minutes so that I can answer your question. And that is very close to my heart also, what I'm trying to tell you with your reference to your question. Is it okay? सभी लोग सुन रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ये बताइए कि आप लोग हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं कि नहीं? Yes, sir. सुनते हैं. Yes, sir. गाने सुनते हैं? गाने सुनते जी हैं? सर. चलिए हम आपको एक गाना सुना रहे हैं. पहले गा के नहीं बता रहे हैं, उसके बोल सुना रहे हैं. और इसके साथ बहुत सारी बातें हैं, मैं उसको छोड़ के सीधे सीधे आ रहा हूं. एक फिल्म के गाने को नेशनल अवार्ड मिला है. नेशनल अवार्ड मिला है. मैं थोड़ा सा आपको फिल्म की दुनिया में ले चलता हूं ताकि आप ये सवाल समझ जाएं जो सवाल आपने पूछा. नेशनल अवार्ड, भारत सरकार नेशनल अवार्ड मिला एक गाने को. उसके बोल हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है. कुछ लोगों ने सुना है कि नहीं सुना इस गाने को?
नो No, सर। नो सर। नहीं यस सुना है? सर, यस सर, सुने हैं। जिन्होंने नहीं सुना है उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। सब भोसले ने है सर। Yes, very good. And Asha Bhosle got national award for this song, which is a song from Hindi movie Ijazat, and lyrics by my guru Gulzar Saab. मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, आपको आफ्टर द क्लास यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, सुन लीजिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। तो जिसने किसी ने कहा कि सुना है, तो उसमें एक अंतरा आता है, उसमें एक शब्द है, मैं आपको बता दूं, उसमें एक है 116 चांद की रात। सुना है कि नहीं आपने इस गाने को? अगर सुना होगा तो जिन्होंने सुना उसको सुना होगा। वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग, हार्ट टचिंग सॉन्ग, 116 चांद की रात है। किन्होंने सुना है बताइए, हाँ या नहीं सुना है? जिन्होंने गाना वो बताएं मुझे। उसी गाने के में है। There is no answer from your side. Are you able to hear me or not? Because there is silence. Yes sir. Yes, sir. Okay. कल क्या कहा था आपसे? मैंने कल कहा था आप बच्चों की कहानियां भी पढ़िए, पोइट्री भी पढ़िए, लिटरेचर भी पढ़िए, गाने भी सुनिए, बिकॉज यू पिक गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर। यू पिक गुड थिंग्स, एक्सपेंड योर विजन, एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग। तो जिन्होंने गाना सुना है वो बताएं कि उन्होंने गाना सुना होगा, उसमें ये एक लाइन आती है कि नहीं, 116 चांद की रातें। यस सर, आता है। चलिए, अब कुछ ऐसा इत्तेफाक था, अब मैं बाकी सारे बैकग्राउंड एडिट करके सीधे आ जाता हूं, कि एक दिन किसी ने, there was some young girl, was probably of your age, of graduation class. She asked the lyric writer Gulzar the question कि why have you written 116 चांद की रातें? जैसे आपने पूछा ना 20 साल क्यों, मैं उसी पे लिंक कर रहा हूं। Yes, yes, you are saying something. Somebody want to say something? Okay. Then he told that girl, अगर मैं यहाँ पे 116 की जगह 12 चांद लिखता तो भी आप सवाल ये पूछते, 130 चांद लिखता तो भी सवाल ये पूछते। जैसे आपने पूछा ना 20 साल क्यों, अगर मान लीजिए यूएनडीपी यहाँ पर 30 साल लिखता तो भी आप सवाल ये पूछते, अगर 25 है तो भी आप सवाल ये पूछते। तो मैं उसी के बात रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि पहली बात 116 के जो वर्ड्स हैं वो हमारे लिरिक्स के मीटर ऑफ द लिरिक्स में एकदम सही बैठते हैं। एंड देन ही टॉक्ड अबाउट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड द लिरिकल वैल्यूज, पोएटिक वैल्यू बिहाइंड दैट पर्टिकुलर sentence. Suppose आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो या आपके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, जिनसे आप बहुत दिन बाद मिल रहे हो, तो आप क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं जब बहुत दिन बाद मिले, अपने किसी बहुत क्लोज फ्रेंड से मिले, अपने रिलेटिव से मिले या पेरेंट्स से मिले, तो क्या कहते हैं आप? कैसे, जितने दिन बाद मिले कैसे कहते हैं आप? जस्ट गिव मी अ सेंटेंस who is very close to you, क्या कहेंगे उसे? सर इतने दिन कहाँ गायब? सर ये पूछेंगे कि क्या कह रहे हैं? गुलरी की दूज का चांद हो गया था भाई। हाँ, जैसे मान लिया आपने कहा दूज का चांद हो गया, चलिए और कोई बताइए। गुलरी के फूल हो गया था क्या जो नदी नहीं मिली? चलिए वो भी हो गया, गुलर के फूल हो गए।
गुलाब के फूल होना मतलब है दुर्लभ हो जाना, वो तो दुर्लभ होता है। हम दुर्लभ की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने किसी भी बहुत क्लोज फ्रेंड से या पेरेंट्स से या रिलेटिव से बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, एक लंबा समय बीत गया था, तो आप क्या कहते हैं उसे? अपने ड्यूरेशन को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? ड्यूरेशन जो आप जिसके बाद मिले हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे? टेल मी द सेंटेंस दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, दैट इज द वे ऑफ essay writing also. It is not I am taking the film world. I am telling you how your imaginations, expression power, choice of words are very important. सर कहाँ ईद का चांद हो गए? चलिए चलिए, इन्होंने कहा कहाँ ईद का चांद हो गया। एनी अदर सेंटेंस ऑफ बाय एनी अदर वर्ड? बहुत अच्छा लगा मिलके। नहीं नहीं, अच्छा लगा मिलके नहीं, जो इतने गैप के बाद मिले, हम उस गैप की बात कर रहे हैं। I missed you both. That is why I always say, please give some time to literature, especially poetry. You will understand the value, the meaning of life, and expression power also, which is very, very important when you face interview board and when you write in mains. So whatever I tell you, I take you that direction always. Between the lines, my objective is to make you more emotional, more effective in your thinking and writing. तो मेरा असली विषय वो है। And I will tell you. बोलेंगे आपको देखने को तो आंखें तरस गई। चलिए चलिए चलिए, देखिए आपने जो भी कहा, अब मैं उसको थोड़ा सा और सेंटेंस बताता हूँ जो शायद आप आम भाषा में कहते हैं, लेकिन अभी आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं। आप जब कोई बहुत दिन बाद मिलता है तो आप कहते हैं, अरे एक अरसे बाद मिले हो, यही कहते हैं ना, एक अरसे बाद मिले हो। ये कॉमन सेंटेंस बोलते हैं कि नहीं आप? प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, हाँ या नहीं? यस सर। बोलते हैं एक अरसा हो गया, एक अरसा हो गया मिले हुए, बहुत दिन बीत गए, आपसे बातें नहीं हुई थी, एक जमाने बाद मिले हो। आप यही बात तो कहते हैं, यही सेंटेंस तो यूज करते हैं। या जिन्होंने कहा ईद का चांद हो गए या गुलर के फूल हो गए तो दुर्लभ हो गए दर्शन, ये कहते हैं। जाहिर सी बात है, आपने कहा एक अरसे बाद मिले हो, जमाने बाद मिले हो, युग के बाद मिले हो, ये ऑल दीज सेंटेंसेस रिफ्लेक्ट द गैप, टाइम पीरियड गैप जिसके बाद आप मिल रहे हैं। नाउ द सेंटेंस, अगर आपका कोई बहुत करीबी बहुत दिन बाद आप मिलता है और आप उससे ये कहें आज पूरे 72 दिन के बाद मिले, बताइए क्या अंतर है दोनों सेंटेंस में? When you say you have met me after 72 days, it means you have counted each and every day, each and every moment of separation. बात समझे कि नहीं? 72 दिन बाद मिले हो यानी आपको हर एक दिन अलग होने का उसका एहसास है। आपको एक जमाने बाद मिले हो, इसमें वो बात नहीं आई, जो बात आई क्या 72 दिन बाद मिले हो। यानी that separation has haunted you. You have felt at the bottom of your heart the pain, the separation. That is the poetic value. That is the expression power. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आपको बताएं। यस सर। बताइए कौन सा सेंटेंस आपको बेहतर लगा? अरे बड़े दिनों बाद मिले हो या अरे 72 दिन के बाद मिले हो? कौन सा अधिक पावरफुल है? अरे 72 दिनों के बाद कौन सा सेंटेंस आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है? बताइए। 72 दिन वाला सर। देखिए आपने खुद ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं? जब मैंने एक फिल्म के गाने से यही उन्होंने जवाब दिया था कि बहुत सारी बातें की थी विच आई कैन नॉट डिस्कस। आपसे अभी मैं बात नहीं करता, आमने सामने होता है, बहुत सारी बातें मैं बताता कि उन्होंने और क्या क्या कहा था। एनीवे दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो यही बात होती है कि व्हेन यू राइट एनी नंबर तो उसके पीछे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो व्हेन यू आस्क व्हाई 20 इयर्स, तो उन्होंने वही सवाल पूछा था व्हाई 116, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा था कि अगर मैं 130 लिखता तो भी आप सवाल पूछते, 110 लिखते तो भी सवाल पूछते। तो दैट इज सम मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर यूएनडीपी ने कंसीव किया है
और स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने कंसीव किया है कि द मिनिमम पॉसिबल कैन बी 20 years in worst situation, but not less than 20 years. That is why they have conceived 20 years. Is it okay? Have you got my answer correctly? Yes, sir. Okay. Now, again, coming to last three columns, maximum observed for all four, minimum conceived for all four, but differently, and actual for all four will be different for each country. Please look at again the table and tell me still if I have any doubt, then I can clear that doubt. सर Yes. सर जो ऑब्जर्वेशन है मैक्सिमम वैल्यू वो इंडिविजुअल का हो सकता है या किसी मीन वैल्यू होगा सभी लोगों का? मैंने आपसे कहा किसी भी एक देश का मीन वैल्यू नहीं, किसी भी एक देश का जो भी उस इंडिकेटर के रेफरेंस में अब तक का मैक्सिमम पाया गया हो, उस इंडिकेटर के रेफरेंस में। अब बताइए, फिर सवाल पूछिए, क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको? कंफ्यूजन है सर कि ओनली के कोई आदमी अगर जीता है 115 साल पहली बात क्लियर कर दूं, इट इज नॉट आदमी, इट इज कंट्री, इट इज कंट्री। आप ये कंट्री के लिए बना रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति के लिए बना रहे हैं। अब आगे बताइए। क्लियर सर। अरे आपने देखिए लास्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एकदम लास्ट कॉलम पे ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल ऑफ, क्या लिखा नीचे, एक्चुअल ऑफ कंट्री। तो फिर आप आदमी क्यों ले रहे हैं इसमें? अरे सिंपल सी कहानी है। अब जब मैंने ये बताया था चारों इंडिकेटर्स, तो मैंने बहुत डिटेल बताया था कि इट इज फॉर इंडिविजुअल कंट्री, और हर बार हम कंट्री के लिए बात कर रहे हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात कर रहे हैं। क्या पर कैपिटा जीएनआई किसी व्यक्ति के लिए होता है या पूरे देश के लिए है पर कैपिटा जीएनआई? तो कंट्री के लिए। तो देन व्हाई आस्किंग द क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल पर्सन? इट इज नॉट पर्सन बट द कंट्री। मैंने कहा भी सपोज देयर आर सो मेनी कंट्रीज, कंट्री Z की इतनी है, कंट्री Y की इतनी है, मैंने कंट्री एग्जांपल दिया, नॉट इंडिविजुअल पर्सन। ओके, now the actual issue is how to convert this system into value for getting index value. Very simple. Take one example, you will get the answer of all indicators and all dimensions. Now just look at the equation. Indicator value for I means I indicator. There are four indicators. That is, I means indicator. Actual minus minimum, maximum minus minimum. That is this is the formula which is applied to each indicator. Actual value, मान लीजिए सपोज हम लोग नाप रहे हैं फर्स्ट, सेम फॉर्मेट विल बी फॉर ऑल फोर। सपोज हम नाप रहे हैं फर्स्ट लाइफ, डायमेंशन ऑफ लाइफ। Indicator I is life expectancy at birth. Suppose country is country A. Country A का एक्चुअल कुछ होगा? कंट्री A का एक्चुअल कुछ होगा? मान लीजिए कंट्री A का एक्चुअल है 40 years, कंट्री B का एक्चुअल हो सकता है 60 years, कंट्री C का हो सकता है 58 years। तो हर कंट्री का अलग होगा। तो टेक एग्जांपल ऑफ कंट्री A जिसके लिए हम निकाल रहे हैं। कंट्री ए का एक्चुअल है सपोज 40 years, तो हमने एक्चुअल रखा यहां पर 40। क्लियर है? बिल्कुल इस इक्वेशन में रखा 40 बिकॉज हम लोग कंट्री ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। देन ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम, कंसीड मिनिमम। मिनिमम इज 20 years, तो जो हम मिनिमम वैल्यू है ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन में आप मिनिमम रखिए 20। एक्चुअल वैल्यू हो गया 40, मिनिमम 20, मिनिमम 20। अब मैक्सिमम हमने कहा कि मैक्सिमम हैज बीन ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम। सपोज ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम से इज 60, मान लीजिए 60 मैक्सिमम है सपोज, तो आपके क्वेश्चन हो जाएगा 40 - 20 डिवाइडेड बाय 60 - 20। द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू विल बी सेम फॉर ऑल द कंट्रीज जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, बट actual value of each country will be different.
बात समझ में आई कि नहीं बताएं? Yes, sir. नाउ अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 60 माइनस 20, जो हमने एग्जांपल लिया, तो वैल्यू कितनी आएगी बताइए? वैल्यू निकाल 0.5, sir. 0.5, sir. 0.500, 3 पे निकालिए 0.500। आप समझ गए कैसे वैल्यू आएगी? Yes, sir. ओके, नाउ सपोज टेक सम अदर कंट्री। सपोज किसी दूसरे देश की एक्चुअल वैल्यू 60 है, एक्चुअल 60 है, मिनिमम 20, मैक्सिमम 60 लिखा है अपने, बिकॉज मिनिमम मैक्सिमम सेम रहेगा। तो अगर किसी कंट्री Z की एक्चुअल 60 हो तो 60 माइनस 20 अपॉन 60 माइनस 20 वैल्यू कितनी आएगी बताइए? 1.000। किसी भी कंट्री की 60 ज्यादा तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैक्सिमम को ऑब्जर्व कर लिया है, तो 60 ज्यादा होगी नहीं। नाउ सपोज किसी थर्ड कंट्री, किसी कंट्री की एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 20 हो, तो कितना आएगा? 20 माइनस 20, 60 माइनस 20, कितनी वैल्यू आएगी? 0। 0 आएगी। 0 सर। 0 आएगी। इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ इंडिकेटर कैन बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1.000। नो कंट्री विल हैव इंडिकेटर वैल्यू लेस देन 0 और मोर देन 1। बताइए, बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Exactly. Yes, sir. तो फॉर ईच इंडिकेटर वैल्यू, विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। बात समझ में आई? तो अगर हम इसी फॉर्मूले से ये चारों इंडिकेटर की वैल्यू निकालें, तो हर कंट्री की, फॉर ईच कंट्री, फॉर ऑल दीज 4 इंडिकेटर्स, द वैल्यू विल बी बिटवीन 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1। इसी बीच तो सबकी वैल्यू होगी, इतने में कोई डाउट तो नहीं होगा आपको? No, sir. So you will get 4 values. For any country, you will get 4 values varying between minimum 0 to maximum 1. तो इंडिकेटर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ये बात एकदम क्लियर हो गई कि नहीं बताइए आप? Yes, sir. ओके, नाउ लुक एट द सेकंड डायमेंशन एजुकेशन, जिसमें आपको 2 वैल्यू मिलती है। वन इज मीन एयर स्कूलिंग 0 to 1, एक्सपेक्टेड स्कूलिंग 0 to 1। अब आपको इन दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करना है एक वैल्यू ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि डायमेंशन तो एक ही है। उसके लिए मैंने पैराग्राफ लिखा है, फॉर एजुकेशन द अबव इक्वेशन इज अप्लाइड टू ईच ऑफ 2 सब कंपोनेंट्स, देन अ ज्योमेट्रिकल मीन of the resulting indices is created, and finally above equation is applied to geometrical mean of indices using 0 as the minimum and highest geometrical mean of resulting indices time and the constraint maximum। ये बात पढ़ लीजिए, एकदम समझ में आ जानी चाहिए। हम सेम जो ऊपर जो आपका इक्वेशन है उसी से हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे और उस दोनों वैल्यू का ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लेंगे, और उस ज्योमेट्रिकल मीन को 0 हम ऑब्जर्व करें, 0 लेंगे मिनिमम और हाईएस्ट हम लेंगे जो भी हमने अब तक के पीरियड में मैक्सिमम मिला हो, दोनों के एवरेज, बिकॉज बोथ आर इक्वली वेटेड। मैंने कई बार ये बात की थी। जब आप ये वैल्यू रख के निकालेंगे तो आपको फिर एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। एक्चुअल हर कंट्री का अलग होगा, मिनिमम मैक्सिमम आपने 0 और मैक्सिमम आपने कंसीडर कर लिया है, तो आपको फिर वैल्यू मिलेगी एक, जो होगी वैल्यू ऑफ एजुकेशन। यानी 2 indicators of education will be converted by applying the same formula into 1 value of education। आपको डायमेंशन वैल्यू मिल जाएगी एक, जो 2 इंडिकेटर से मिलके बना लेंगे। I hope it should be very simple, and same you will use for third income। It means finally you get 3 values which are 3 dimension values, because indicator value of life is also indicator value of dimension, indicator of value of income is also indicator value of dimension, but indicator values of education are converted into 1 index value of education, dimension of education। बताइए, इतनी बात क्लियर है या नहीं? बताएं कि सेम इक्वेशन विल बी अप्लाइड फॉर 2 indicators of education only, क्योंकि एजुकेशन दो इंडिकेटर्स हैं, आपके सब कंपोनेंट्स हैं,
और उन दोनों को आप ज्योमेट्रिकल मीन से कन्वर्ट करके एक इक्वेशन पे एक वैल्यू पे आ जाएंगे जो कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन होगा। तो इस तरह से आप 3 वैल्यू मिल जाएगी। वन इज इंडेक्स ऑफ लाइफ, वन इज इंडेक्स ऑफ एजुकेशन, वन इज इंडेक्स ऑफ इन। सर एजुकेशन वाला समझ बताइए बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एजुकेशन वाला समझ में नहीं आया सर। ये बताइए, लाइफ का निकालना आपने सीख लिया? यस सर। एक्चुअल माइनस मिनिमम, एक्चुअल माइनस मिनिमम। मैंने क्या लिखा, यही जो फॉर्मूला है वो सब पर अप्लाई करेगा। मैंने लिखा था ना, आई फॉर इंडिकेटर, दिस आई जो लिखा है अपने इंडिकेटर वैल्यू आई कैन बी इंडिकेटर, आई मीन इंडिकेटर कैन बी लाइफ, कैन बी मीन ईयर्स, कैन बी एक्सपेक्टेड और कैन बी इनकम। आई तो वही रहेगा और फॉर्मूला भी वही रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए, जिन्होंने सवाल पूछा था वो बताएं सिर्फ, कितने डायमेंशन है एचडीआई में, कितने आयाम है एचडीआई के? क्या बोले सर? मैंने पूछा जो मानव विकास सूचकांक हम निकाल रहे हैं वो कितने आयामों पर आधारित है? आयाम 3 सर। 3 है। और कितने संकेतक हैं? संकेतक कितने हैं, इंडिकेटर्स? 4 सर। लेकिन इन 3 आयामों में से पहले आयाम में एक ही इंडिकेटर है, तीसरे आयाम में भी एक ही इंडिकेटर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी इंडिकेटर है वही आयाम की वैल्यू हो जाएगी। यस सर। दिक्कत यह है कि एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं, तो इन 2 इंडिकेटर्स को हमें एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो होगा वैल्यू ऑफ एजुकेशन, डायमेंशन। हमें 3 वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि एचडीआई comprises of 3 dimensions. For that we have to arrive at 3 values of each dimension. ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब सवाल ये है कि जब एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं तो हमें इन दोनों इंडिकेटर्स को, 2 हिस्से हैं एजुकेशन के, इनको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी। तो पहला इंडिकेटर की वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने सबका निकाला था, एक्चुअल माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन की वैल्यू निकाल लेंगे या नहीं, बताइए? यस सर। निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला है। इसी प्रकार से आप सेकंड के भी निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला। यस सर। ठीक है, तो बताइए आपको एजुकेशन के लिए 2 अलग अलग वैल्यू मिल गई कि नहीं? यस सर। 2 वैल्यू मिली, लेकिन डायमेंशन तो एक है। अब हमें इन 2 वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक वैल्यू में। समझ गया क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि डायमेंशन 3 है हमारे, और केवल एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं। तो वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ दीज 2 इंडिकेटर्स इनटू 1 डायमेंशन वैल्यू। बात समझ आई कि नहीं? इन दोनों का हमें कन्वर्ट करना है एक में, और दोनों इक्वली वेटेड भी हैं, दोनों का भारांक बराबर है। तो हमने क्या किया कि जो पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू मिला, हमने उन दोनों वैल्यू का ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लिया। ज्योमेट्री तो जानते हैं ना कैसे निकालते हैं? यस सर। ठीक है, आपने इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लिया। तो अब जब 2 वैल्यू का ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी या 2 मिलेगी? आपको 1 मिलेगी। अर्थात ये हो गया एक वैल्यू एजुकेशन का किसी एक कंट्री के लिए। किसी एक कंट्री के निकालेंगे ना आप ये? यस सर। सेम कंट्री के निकाल लेंगे, सेम तीसरी कंट्री के निकाल लेंगे। सबके 2-2 वैल्यूज आ रहे हैं, और जब सबके 2-2 वैल्यूज का ज्योमेट्रिकल मीन निकालेंगे तो सबके एक एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप उसी एक एक वैल्यू के आधार करेंगे मिनिमम 0 और मैक्सिमम। आपने कहा कि 2 इंडिकेटर्स का मैक्सिमम आज तक देखा गया वो मैक्स करा था, ऐसे यहां पे भी तो हो जाएगा ना। 0 मिनिमम है, मिनिमम है कि नहीं 0 एजुकेशन में? बताइए दोनों इंडिकेटर्स में। यस सर। अब मैक्सिमम क्या लेंगे? आप मैक्सिमम लेंगे, दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन ही तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 2 में से 1 बना रहे हैं ना। वही लिखा है, हाईएस्ट ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द रिजल्टिंग इंडिसेस फॉर द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन एज द मैक्सिमम। यानी 1980 से लेकर आज तक की अवधि में
जो भी मैक्सिमम आया होगा इस विधि से वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 0 है, और एक्चुअल आपने हर देश का अभी आप निकाला ज्योमेट्रिक मीन के द्वारा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, बताइए आप। आ गया सर। हर कंट्री का एक्चुअल आपने निकाल लिया भी नहीं, ज्योमेट्रिक मीन द्वारा निकाल लिया। जब आप हर कंट्री के लिए निकालेंगे तो सबका एक्चुअल अलग अलग हो जाएगा। मिनिमम 0 एज्यूम आपने कर लिया है, और जो एक्चुअल निकाला है ऐसी एक्चुअल जब 1980 से लेकर आज तक देखेंगे तो कोई एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको, वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड। सेम फार्मूला है। एकदम क्लियर है कि नहीं, बताइए। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यस सर, क्लियर सर। अब बताइए आपको फाइनली कितने वैल्यूज मिले, 2 या 3 या 4? 3 सर। 3 वैल्यूज। अब आप इन तीनों वैल्यूज का ज्योमेट्रिकल मीन निकालिए। एकदम लास्ट मैंने बोर्ड में लिखा है SDI इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ लाइफ इंटू इंडेक्स ऑफ एजुकेशन इंटू इंडेक्स ऑफ इनकम। ये तो जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन कैसा निकालते हैं, क्लियर तो है ये। तो 3 वैल्यूज है, आपने 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनका थर्ड रूट निकाल दिया, ज्योमेट्रिकल मीन आ गया। एंड तो आपको जब ये फॉर्मूले में आप तीनों वैल्यू रख देंगे लाइफ, एजुकेशन और इनकम का, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो वैल्यू मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। इसी बीच तो होगा ना, क्योंकि लाइफ, एजुकेशन और इनकम तीनों की वैल्यू 0 to 1 के बीच तो आई है। स्पष्ट है कि नहीं, बताइए। यस सर। एकदम क्लियर होना चाहिए। यस सर। बिकॉज लाइफ, एजुकेशन, इनकम कैन बी मिनिमम 0, मैक्सिमम 1. So if it is maximum 1, the HDI will be 1. If minimum 0, minimum 0. But actually every country will have between 0 and 1. That will be the final value of HDI. अब देखिए, जब पुराना वाला HDI था, पिछले वाला, उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन के जगह पर निकालते थे अर्थमेटिक मीन। दिस इज वन मोर चेंज। वहां होता था अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 वैल्यूज इज HDI. Now it is geometrical mean of 3 values is HDI. It is the refinement, because you always know that geometrical mean is a better mean than arithmetic mean. ये तो आप जानते ही हैं, आपने BA1 में पढ़ा है ये। Now you get one value of HDI for each country. That will be between 0 and 1. Is it okay? बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? Okay. क्लियर है सर। ओके, नाउ व्हाट यू कंक्लूड, किसी कंट्री का वैल्यू सपोज 348 है, किसी का 573 है, किसी का 89 है, कुछ हर कंट्री के वैल्यू अलग अलग होगा। नाउ UNDP हैज कैटेगराइज्ड द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनल HDI वैल्यूज, और उसकी कैटेगराइज जो किया है उन्होंने वो ऐसा है। दिस इज द स्ट्रक्चर। Very high human developed countries are those countries जिनकी HDI वैल्यू 0.800 या उससे ज्यादा हो। पहले फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम देखिए, थर्ड फोर्थ बताइए। अब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जिनकी वैल्यू 0.700 या उससे ज्यादा हो। मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री दोज कंट्रीज जिनकी वैल्यू 0.550 या उससे ज्यादा हो। And low human development countries are those countries जिनकी वैल्यू 0.550 से कम हो। This is the structure of categories of countries on the basis of their value of HDI. Now, जो लेटेस्ट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो 2020 की, in which 189 countries have been covered. Next report you will get sometime in December 21. By that time, we'll continue our class and I will update the new report and new values of each country and some important facts and figures. So till date, recent is 2020 HDR, जिसमें 189 countries शामिल किए गए थे, और different categories में number of countries मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। 66, 53, 37, 33, total 189 countries. And the average HDI values of all those countries in their respective groups or categories, I have also written. And for the entire world, the HDI value was 0.739. That is on an average,
the human development level of the world was high human development on an average of the world, but not for different countries. Is it okay? Is it okay? Because third and fourth column will change after a couple of months, but not first and second. First and second column will remain same, but third and fourth column will change because we'll have HDR 2021. ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड जो कैटेगरी है उसमें भी चेंज कोई नहीं है, तो कैटेगरी तो सेम रहेगा. Now look at some important results of HDR 2020, Human Development Report 2020, जो लास्ट है आपका. Now out of 189 countries, I have given some highlights because sometime highest is asked, lowest is never asked, लेकिन मैंने लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए. Highest is asked. तो first rank highest is Norway, value 0.957. Lowest is Niger, value is 394, 189. And other countries have been ranked by the UNDP based on their values. कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें? एनी डाउट? नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? Among BRICS nations, you can see India's rank among BRICS is lowest, and that of Russia is highest among BRICS nations. Among all the nations, ranking are given 84, 52, 131, 85, and 114. But sometimes they ask rank of India. So I have written rank of India in HDR 2020 is 131 with a value of 0.645. I hope there should no doubt about this, because it is simple results what I am mentioning here. Now, in which category India is placed? 0.645? थर्ड कैटेगरी. Sir, medium human development. Yeah, it is medium human development, because for high it should have been 0.700. But we are not 0.770 and above, because we are only 0.645. HDI, although they don't ask values, never ask values, they ask rank. In your questions, they are either top country or India's rank and so on. Now, if you look at HDI value of India, what do you conclude? What do you conclude? What is your observation about this rank and this value? Out of 189 countries, India is 131. And value is 0.645. Tell me, what is your observation? Sir, very soon India will be high human developed country. No, I'm not getting you. I'm just asking you, as per the latest Human Development Report 2020, you know the situation of India. It is ranked 131 out of 189 countries with a value of 0.645. My question is, on the basis of the result of HDR 2020, what is your observation? How Sir, do you, India's position is not good. how do you Sir, see this, how do you see this report in Indian context? India's Very bad. Good than approx at 40 countries. I'm not getting. क्या कह रहे हैं आप? So I am saying that India's position is
good than the countries whose position is less, whose rank is less? I don't know what you want to say or what you have said. I don't, because I'm not getting your correct words and sentence. क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? Actually, sir, I am saying that India's position is good in compare the countries whose rank is. Means you want to compare India with that of Pakistan, Means less or than Nepal. India. That is why you want to say. That is Like why I the want to Nepal, say. Bangladesh, and Pakistan. हाँ, तो मैंने लिखा है, I have just mentioned some neighboring countries, because मैं उसको लिखना जरूरी नहीं था, मैंने इसलिए लिखा कि because sometimes people are very eager कि सर पाकिस्तान कहाँ पर है, बताइए पाकिस्तान. I don't know why, because both countries are not comparable at all. Still you ask the question. इसलिए मैंने लिख दिया है, because when the question is about India, then there is no point of mentioning Pakistan, which is not comparable at all, or Nepal, very, very small, etc., etc. Although today also and yesterday also you must have gone through global hunger index, and you would not like to compare India's ranking with that of Pakistan on the basis of global hunger index, which is also very important, because poverty and hunger, these two are the global goals 1 and 2 in the sustainable development goals, and India's rank has slipped below Pakistan, below Bangladesh, etc., etc. मेरे ख्याल से पढ़ा होगा अपने अखबार में, कल से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि भूख के मामले में इंडिया की स्थिति और भी खराब हो गई है, और जिन देशों से आप तुलना कर रहे हैं उन देशों से हम बदतर हैं भूख में. Yes, sir. एनीवे, मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं. देखिए, अब मुझे सिर्फ बताइए कि इंडिया की जो वैल्यू और सामने दिख रही है, आप इंडिया के बारे में यहाँ पर आपके मन में नेगेटिव बातें आ रही है, पॉजिटिव बातें आ रही हैं, इसको देखते हुए? सर पॉजिटिव आ रही है. पॉजिटिव आ रही है, क्यों नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों आ रही है? यस सर, क्योंकि सर इंडिया इतना बड़ा, इतना पॉपुलेशन है, फिर भी वो सब कुछ इतना मैनेज करके चल रहा है. सर इतने छोटे छोटे कंट्री हैं जो कि इंडिया के कंपेयर हम लोग कर रहे हैं उससे. तो ऐसे तो अगर हम लोग फिर कंपेयर करें, आपने छोटे बड़े की बात की, आपके सामने 85 पर है चाइना, जो फिलहाल हमसे साइज ऑफ ऑप्शन में बड़ा है, तो फिर आप कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं वहां पर? यस सर. उसका तो 0.761 है, रैंक इज 85. यस सर. ठीक है, देखिए. यस सर. अगर हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हाउ आई सी दिस इन ए टोटली डिफरेंट वे. नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं, आपको समझ आएगी. ये देखिए, मैंने लिखा है कि इंडिया प्रोफाइल, ऊपर देखिए HDI ट्रेंड्स फ्रॉम 1990, जब SDI लॉन्च किया गया, दैट टाइम इंडियाज वैल्यू वाज 0.431 एंड 431 मींस किस कैटेगरी में आते हैं? 431 कहां पे आएगा? लो ह्यूमन डेवलपमेंट. 431. And from 431, if you look at the changes, we have improved our position to 0.645. 2019 इसलिए लिखा है क्योंकि 2020 की रिपोर्ट जो है वो 2019 की वैल्यूज पर बेस्ड है. ठीक है कि नहीं? 19 की वैल्यूज हैं, 2020 की रिपोर्ट है 0.645. तो लुक एट द डिफरेंस, 0.431 और 0.645. बताइए कितना डिफरेंस है ये? अगर आप सब्सट्रैक्ट करें 0.645 में से 0.431, इसको घटा दें, कितना आएगा बताइए? 0.645 माइनस 0.431 कितना आएगा? 0.214 सर. 0.214. बताइए, ये है मिनिमम 0, मैक्सिमम 1. यानी मैक्सिमम 1 ही तो हो सकता है किसी कंट्री का, और किसी कंट्री का मैक्सिमम 1 है नहीं. देखा आपने, नॉर्वे का भी मैक्सिमम 1 नहीं है, उसका 0.9 पर है. तो अगर हमने
0.4 0.6 यानी 0.2 से ज्यादा का चेंज किया है तो 0 आउट ऑफ 1, तो अगर आउट ऑफ 1 आपका 0.214 का चेंज है तो आउट ऑफ 100 कितना होगा, ये कितना परसेंट चेंज हो जाएगा 100 में अगर कन्वर्ट करें तो 20%. तो मोर देन 20%, तो मोर देन 20% जंप अगर हमने किया है जहां पर मैक्सिमम 1 है तो इट इज अ रिमार्केबल चेंज, इट इज अ पॉजिटिव चेंज. And not only this change is remarkable, but we have improved our category also from low to medium. And in medium also, the bottom was 0.550 and top was 0.700 below. तो हमारा जो अभी का वैल्यू है वो वैल्यू आपका है 0.645, which is now very close to moving very close to 0.550 बार मिनिमम, बट हम लोग 0.645 पर पहुंच गए हैं, which are very closer to 0.700. It means we are hopeful that India will certainly, with some better efforts in couple of years, will be easily moving to high human development country. That is the way how you write this in positive way. समझे कि नहीं? हम केवल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसको भी हमने कहा कि कहां हम 0.4 और लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में थे और कहां हम 0.645 कहां मीडियम में आ गए हैं और 0.699 ही तो मैक्सिमम है, 699 यानी बिलो 7. तो जहां पे हम थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे तो सर्टेनली हम अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे. आप देखिए जो हमारा जो इंडिकेटर वैल्यू आई है उस पे हमने लिखा है इंडिकेटर वैल्यू इंडिया की जो है वो क्या क्या है. जैसे हमने लिखा है कि इस रिपोर्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ है 69.7 इयर्स, जबकि वर्ल्ड का है 72.8 इयर्स. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3. मैंने ये भी लिखा है कि किस गोल्स के साथ ये इंडिकेटर लिंक्ड है. स्कूलिंग, आप जानते हैं एजुकेशन इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसके इंडिकेटर्स में एक्सपेक्टेड स्कूलिंग हमारा 12.2 है, एसडीजी 4 है, जबकि ग्लोबल ये 12.7 है. स्कूलिंग हमारा 6.5 इयर्स है, ग्लोबल 8.5 इयर्स है, यानी हमारा मीन स्कूलिंग एसडीजी 4.4 से लिंक्ड है. जीएनआई पर कैपिटा इज 6681 World का एवरेज है $16,734, which is SDGs 8.5, and it means now the greater emphasis can be laid on improving growth rate, and we are getting very positive indications from the IMF recently, जिसने कहा 9.5% growth rate India scale करेगी. With the improvement of in the growth rate, certainly we'll have a better GNI per capita. And that will improve our indicator value and similarly the SDI value. And we are improving our expectancy at birth also and meaner schooling also, because meaner schooling means what was the past. With the passage of time, because when new population will keep on moving to 25 years and above, will certainly improve the value of meaner of schooling, which there is a huge gap of 3.0 years. India is 6.5, world average is 8.5. There is a lot of gap between India and the average world. We have the possibilities of improving the meaner schooling also and GNI per capita also. By improving these two, basically, we can have a better value of HDI and to move on a higher level of HDI category. मेरे क्या बात समझ में आई कि नहीं बताइए? आपको इतने डेटा याद नहीं करने हैं. मैंने 10 साल का गैप लिख के फिर रिसेंटली 4-5 साल का लिख दिया है. आप केवल अगर 1990 फिर 2000 फिर 2010 फिर 2020 पे आ जाएंगे तो आपको पूरे 4 डिकेड का एक अच्छा सा पिक्चर मिल जाता है. और रिसेंट जो यहाँ मैंने लिखा है आपको वैल्यू और इंडिया की वैल्यू ये 2 महीने बाद चेंज हो जाएंगी, क्योंकि दिसंबर में जब नई रिपोर्ट आएगी तो विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंडिया, डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. देन यू कैन हैव अ बेटर एनालिसिस अपडेट. मैंने इसलिए कहा था कि जो आपका ये पेपर है इसमें आप बहुत रिसेंट आपको करना पड़ेगा. तो कीप ए वॉच ऑन ऑल द डेवलपमेंट चेंजेस
बट एक्चुअली हम लोग क्लास तो चलता रहेगा, तो इसलिए मैं आपको अपडेट करा दूंगा, इसका नया डेटा बता दूंगा, दैट देन यू कैन कंपेयर HDR 2020 एंड 2021. तो कई पूछते हैं कि बैकग्राउंड बताइए, तो therefore I have not compared with the HDR 2019 because that is not comparable at all. So we are just waiting for after 2 months we'll get a new SDR, then we'll have new values, new ranking, etc. Then we'll have a better observation. Now हमने HDI, अगर आप देखा, मैंने बताया कि HDI को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने we have improved from 0.4 to 0.6 in last decade. तो हमने इसके लिए क्या किया है, तो मैंने कुछ इसके हाइलाइट्स लिखे हैं आपके सामने कि जब 1990 में पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आया, then suddenly human resource development a global issue. आपको याद होगा, या हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्लानिंग हम लोग के सिलेबस में है, 1990 से 1992 तक हम लोग का प्लान गैप था. वी हैड नो 5 प्लान. 7th प्लान खत्म हो चुका था 1990 में. 2 साल के गैप के बाद हम लोगों ने 8th प्लान शुरू किया 1992 में. और जब 1992 में हमने प्लान शुरू किया, उसका सेंट्रल फोकल थीम रखा था हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिकॉज 90 में UNDP का HDR आ गया था. मैंने कई बार कहा कि जैसे ही HDR आया तो ह्यूमन डेवलपमेंट बिकेम द फोकस ऑफ डेवलपमेंट पैराडाइम इन द वर्ल्ड. इसलिए हम लोगों ने भी अपना सेंट्रल फोकल थीम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रखा, और उसमें जो 3 बातों फोकस किया था, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, दे आर क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ HDI. It means life expectancy, education means education, employment means income. So focusing on those 3 dimensions of HDI, India and the Planning Commission adopted human resource development as a central focal theme. That was the first step of India towards focusing and looking forward to improve our HDI value. Then in 1995, on the advice of the Planning Commission, Madhya Pradesh was the first state to release its state human development report. Planning Commission had asked all the states to prepare and release their state human development report, so that at state level SDI value will improve, it will ultimately improve India's HDI. तो पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने 1995 में अपना रिपोर्ट जारी किया. उसके बाद 1999 में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम ने जारी किया, और यूपी ने अपना पहला SDR रिलीज किया था 2003 में. I have given us some references. कभी कोई साल पूछा था which is the first state to release a SDI, so it was Madhya Pradesh. Then Planning Commission released its National Human Development Report 2001, covering 15 major states of India. उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने 15 प्रमुख राज्यों के लिए रिपोर्ट जारी की, और 10 साल के बाद sorry, after a gap of 10 years, Planning Commission and the IAMR, that is Institute of Applied Manpower Research, इन दोनों ने मिलकर इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 जारी की, इसमें सारे स्टेट को शामिल किया गया. These were a few steps to focus on human development in India and to take measures to improve different dimensions of HDI. और इन्हीं सब का रीजन है, परिणाम है कि आज HDI की वैल्यू इंडिया की 0.4 से जंप करके 0.6 के ऊपर आ गई है. These are the efforts behind that. That is why we are focusing more and more on education. सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम, all these programs are focused on to improve the formal schooling and education system in India, so that when the indicators of education will improve, dimension of education will improve, that will also improve HDI value of the country also. Now lastly, the diagram I had shown you earlier, that 2016 theme, human development for everyone,
And I told you 2016 means the year when United Nations launched its Sustainable Development Goals. That is why I have mentioned SDG goals in the column 4 of the chart. That is why SDI indicators are also part and parcel of SDGs. सतत विकास उद्देश्यों के साथ संबद्ध है और 2016 में यूएन ने सतत विकास उद्देश्य जारी किए थे और उस वर्ष का जो थीम था वो था ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, जिसमें उन्होंने कहा था द 5-point एक्शन एजेंडा. If all countries follow this agenda, certainly the global value of HDI will also improve. And that is where India should focus on, and that is where UNDP is also focusing with the theme Human Development for Everyone. सबके लिए मानव विकास. That is all about, in brief, the HDI. I started the concept of SDI, the background of SDI, the structure of SDI, how it is measured, what is recent report in this regard, and what is the meaning of theme 218 of SDR, and what are the 5-point action agenda. So if मैंने सवाल ये पूछा था कि भारत को और आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया भारत को आगे क्या करना चाहिए, उन 4 इंडिकेटर्स की बात की, और साथ ही साथ आप ये भी डायग्राम सामने रख सकते हैं कि भारत को भी 5 बिंदुओं के कार्य सूची पर काम करना चाहिए. अगर इस पे हम कार्य करेंगे निश्चित रूप से हमारी एसडीआई वैल्यू इंप्रूव होगी. हमने क्या किया है इसका मैंने एक आपको आउटलुक दिया, बिगिनिंग फ्रॉम 8th फाइव प्लान कि हमने कैसे कैसे कदम उठाए और आगे कहां हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसकी मैंने बात की, और एक्शन एजेंडा की बात की. तो ये आपको कभी कभी पूछते हैं आईएएस में गिव योर सजेशंस, तो सजेशंस में आपके सामने ये रखा हुआ सजेशंस, अगर आप केवल इन्हीं 5 को थोड़ा सा इलेबरेट कर देंगे सजेशन आ जाएंगे. और जो मैंने रिसेंट वैल्यूज के साथ बातें की वो भी सजेशन में आप कन्वर्ट कर लीजिए. बाकी आपको खुद सोचना है कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कि ये जो 3 डायमेंशंस हैं और जिनके 4 इंडिकेटर्स हैं उसमें कहां कहां हम और बेहतर कर सकते हैं, एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, what is responsibility of private sector, and what is responsibility of non-government organizations, and what is responsibility of individuals also. If you look at this level, you will have better ideas for improving the SDI value of India. Then I told you, you must conclude your answer with a positive tone, with a hope, and with a determination for the future. ये फ्यूचर में ये हम कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा. And that is how you convert these small points into your answer writing. Now I have completed, although I have exceeded 15 minutes, but I have completed what I wanted to tell you about the SDI. Still you have any questions you can ask. मैंने आपको गाना भी सुना दिया और एसडीआई भी पूरा कर लिया, और मैंने कल ये सोचा था, मैंने डिटरमिन किया था कि कल हम एसडीआई पूरा कर लेंगे और अच्छे से पूरा हो गया. आई होप नाउ एवरीबॉडी मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर एसडीआई. और सवाल अगर आएगा तो आप उसमें बहुत सारी बातें लिख सकते हैं. नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय डिस्कशन. इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो फॉर कपल ऑफ मिनट्स वी कैन टॉक समथिंग which is important for you or for this particular issue. There is complete silence from your side. No sir, no problem. No problem. Okay. Thank you so much. सर इसका PDF मिल सकता है? सब मिल जाएगा. पहले चीजें समझिए. मिलने में क्या, मिलने में तो मैं 1 मिनट दे दूंगा आपको. मिलने की बात पहले समझिए. आप समझ लिए, हम लोग बाद में सारा शेयर कर लेंगे. अभी इसको हम लोग कई तरह से आगे डिस्कस करेंगे. जो बात हम लोगों ने एचडीआई पर लगभग 3 दिन से बात की, वो सारी बातें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी. आप बताइए, अब आईएएस मेंस का वो सवाल आया था कि एचडीआई क्या है, ये कैसे बनाया जाता है. अब उस सवाल जवाब दे देंगे कि नहीं. आप 150 शब्द थे, हमने बहुत शब्द लिख लिया, आपको कट डाउन करके एडिट करके छोटा करना है उसको.
हमने आपके समझ आपके क्लियर हो इसलिए बहुत बड़ा किया मैंने। अब अगर हम आपसे 150 वर्ड्स में ये सवाल लिखने को है तो आप लिख लेंगे आसानी से कि नहीं लिख पाएंगे? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी देखिए कितना आईएएस मेंस का सवाल था ये। आईएएस मेंस जनरल स्टडीज कंपलसरी फॉर एवरीबॉडी, उसमें सवाल ये पूछा गया था। नाउ वी आर सो कंफर्टेबल, बस ऐसे ही सवाल आते हैं आईएएस में, कोई सवाल और अच्छा कहीं से बन के थोड़ी आते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग सीरियस है, आप ग्रास रूट पे समझ रहे हैं, तो मैं कल भी कह रहा था इट इज वेरी सिंपल टू क्रैक आईएएस। लेकिन ये सारी बातें जो हैं इसका आप नोट्स में बनाते रहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें हर बार हर मैगजीन में या किताब में आपको नहीं मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। तो व्हेन यू राइट इन सच अ वे देन नेचुरली योर आंसर विल बी वेरी इफेक्टिव। इसलिए मैं बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। देखिए आपने क्या सवाल पूछा था, 20 साल, और मैंने बता दिया 116 साल। 116 चांद, जबकि चांद एक ही होता है। इसलिए पोइट्री जरूर पढ़िए। पोइट्री लिखने से, पोइट्री पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, और आप कहीं पर भी उसको कोट कर सकते हैं। गंभीर से गंभीर बात को आप एक छोटी सी पोइट्री में बहुत पावरफुली एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे कोई सवाल पूछा जाए, आप इंटरव्यू बोर्ड में आप एक छोटी सी पोइट्री बता सकते हैं कि सर इस बारे में ये पोइट्री आप सुनिए, जवाब मिल जाएगा। एंड दैट अट्रैक्ट्स द इंटरव्यू बोर्ड ऑल्सो। आज आपकी ये पोइट्री छोटी छोटी याद रहेंगी, छोटी छोटी पोइट्री, तो आप अपना ऐसे में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको रोज कुछ कोटेशन बता देता हूँ, कुछ रेफरेंसेस बता देता हूँ, जो मेरे मन में उस समय आने लगता है आपके सवाल पर, मैंने चलिए आपको यही बता दूं। तो यही आपकी थिंकिंग पावर को एक्सपेंड करने का तरीका है। मैंने कल कहा था रीड रीड एंड मोर रीड। मैंने आइंस्टाइन का कोटेशन बताया था फेरी टेल्स वाला, कि बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं उनको फेरी टेल सुनाइए, और बुद्धिमान बनाना चाहते हैं और फेरी टेल सुनाइए। उसका कोई और उपाय नहीं है। कहानियां पढ़िए, कविताएं पढ़िए, विजन एक्सपेंड करिए, तब आपको ये सब बातें और अच्छी तरह से अपने शब्दों में एक्सप्रेस करने की क्षमता आ पाएगी। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। You should never be bookish मत देखिए, आपने रट लिया, लिख दिया। अपने सोचिए कि हम इसमें कैसे लिखें, इसे कैसे अच्छे शब्दों का चयन करके लिखें कि जो बातें यहां पर है उसको हम एक्सप्रेस कर सके। दैट इज द एसेंस। एनीवे वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, एंड सबने कहा कि बहुत से समझ में आ गया था। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने 3 दिन में इस छोटी सी बात को पूरा किया, जो अधिकतम आधे घंटे पूरा कर लेते हैं लोग, या 15 मिनट में कर लेते हैं। बट आई एम हैप्पी दैट यू हैव very seriously understood, listened, asked the questions, queries, और मैंने बहुत सारी बातें बताई। अगेन हाँ, कुछ कह रहे हैं? यस सर। हाँ बताएं सर। ह्यूमन डेवलपमेंट में सिक्योरिटी का क्या रोल है? देखिए हमने जो लिखा है सिक्योरिटी, आप क्यों पूछ रहे सवाल बताइए पहले, सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सर क्योंकि यूएनडीपी का जो 1995 का रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे उस समय मतलब 4 कंपोनेंट्स थे, और बाद में कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को भी इंक्लूड किया गया। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या रोल है? नॉट इन एचडीआई। सर ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। हाँ प्रोग्राम में। देखिए फिर मैं लौट किया हूँ यहाँ पर। देखिए आपके सामने है, मैंने कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल किसी एक सेंट्रल फोकल थीम पर बेस्ड होता है। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो 95 का नहीं, 94 का है। आपके सामने देखिए लिखा हुआ है न्यू डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। न्यू डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। अब आप सवाल पूछिए मुझसे, बिकॉज दिस इज नॉट एचडीआई। मुझे लगा कि आप शायद उससे कंफ्यूज हो रहे हैं, 4 था 3 था जो कंपोनेंट थे। नो, इट इज एचडीआर थीम्स। अब आप सवाल पूछिए, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी 1995 का था, उसमें 4 एसेंशियल कंपोनेंट बताए गए थे। हाँ ठीक है। प्रोडक्टिविटी, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और एम्पावरमेंट। ठीक है। तो सर ये चारों का तो कंसेप्ट क्लियर है कि क्यों इंक्लूड किया गया, और बाद में कोऑपरेशन और सिक्योरिटी को भी किया गया। तो कोऑपरेशन का भी कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन सिक्योरिटी को क्यों? देखिए पहली बात, जो कोऑपरेशन है उससे आप क्या समझते हैं, अगर क्लियर है तो बताइए पहले। मैं आपको लिंक करूं सिक्योरिटी के साथ भी।
सर कोऑपरेशन मतलब कि जैसे कोई भी कंट्री है वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनके साथ कितना कोऑपरेट कर पा रही है, उनकी नीड्स के साथ कितना कोऑपरेट कर पा रही है उस नहीं चीज देखिए, को। द कोऑपरेशन वर्ड इज वेरी एनलार्ज्ड। अगर आप एसडीजी गोल पढ़ेंगे, लास्ट गोल एसडीजी 17, तो आपको कंसेप्ट का कोऑपरेशन का रिसेंट कंसेप्ट समझ आएगा। कोऑपरेशन इज नॉट विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल। Cooperation means cooperation among communities, cooperation between private and public sector, cooperation between people and the community organizations, NGOs, etc., and also cooperation at regional and global level also. Cooperation is very huge meaning when you talk about human development report of UN at a global level. मेरे ख्याल बात क्लियर हो रहेगी थोड़ी सी। And human security. Now, human security has much more emphasized dimensions also. जब भी आप कहते हैं security for human being, you think about first ecological security, पारिस्थितिकी सुरक्षा. You talk about water security, जल सुरक्षा. You talk about food security, खाद्य सुरक्षा. These are now major concerns of human security. तो human security का मतलब केवल नेशनल बाउंड्रीज की डिफेंस सिक्योरिटी से नहीं है. Now the biggest challenge, मैंने 3 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट की और इन तीनों में so many sub dimensions are there. When you talk about ecological security, human being we cannot ensure security of human beings without ensuring ecological security. We cannot ensure human security without ensuring food security and water security, which are the emerging concerns of security across the world. These are new dimensions of human security, which was not focused in earlier time. थोड़ी बात समझ में आ रही कि नहीं बताइए? कुछ बात ह्यूमन सिक्योरिटी से मतलब क्या है? तो all very big concepts. Human Development Report focuses on various dimensions of human development. आपने लिखा था ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी का जो उद्देश्य है यूएनडीपी का वो है बेटर लाइफ फॉर ह्यूमन बीइंग, उनके लिए लिंक करना कंट्रीज से पॉलिसीज को. दैट इज द एसेंस एंड दैट इज एसेंस फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी ऑल्सो. और ह्यूमन सिक्योरिटी अब जब सब एरिया में जाते हैं तो इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी, रिलीजियस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सो मेनी डायमेंशन आर कवर्ड अंडर दीज ब्रॉड डायमेंशन ह्यूमन सिक्योरिटी. तो मैंने इसमें सबसे इमर्जिंग जो चैलेंज है आज वो है इकोलॉजिकल सिक्योरिटी. अगर आप यूनाइटेड नेशंस का 2020 से 2030 तक का पूरा 10 साल का दशक देखें तो रेस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी इज द चैलेंज फॉर नेक्स्ट 1 decade. जब आपने अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि द वेरी सीरियस सिचुएशन ऑफ इंडिया एज फार एज ग्लोबल हंगर इंडेक्स लेटेस्ट रिपोर्ट इज कंसर्न, इट मीन्स we have not very effectively focused on food security. हंगर इंडेक्स में अगर हमारा रैंक नीचे गिरा है इसका मतलब है कि फूड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं हो पाया है. Is it okay? Is it okay or not? So yes, how you link that issue with the current situation, that is the more important. तो आप उसको इस डायमेंशन सोचिए. आप ह्यूमन सिक्योरिटी में केवल फूड सिक्योरिटी की बात करें और रिसेंटली इफ यू लुक एट द रिपोर्ट्स अबाउट द वाटर क्राइसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, then you can have better understanding that the very, very urgently focused issue is across the world is water security. These all are dimensions of important dimensions for human survival and their security. So human security is very, very huge term, elaborated term. It covers many dimensions. I have just give you a glimpse of some dimension of human security.
which are non-conventional dimensions and the recent focus by the United Nations across the world. Is it okay now? Is it okay now? Yes, sir. Okay, now it is already 10:30. Then we can have another class tomorrow, same time, 9 o'clock, and I will cover some new dimension of our discussion based on the concept of development. Okay, then I'm closing right now and meet tomorrow at सेम टाइम. कल 9 बजे फिर मिलेंगे. कुछ एक नई बातों पर आएंगे. हमने एक हिस्सा पूरा किया HDI जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी इससे कुछ जुड़े हुए हैं, इससे लिंक्ड हैं कुछ जो हमारे सिलेबस में. पहले सिलेबस पूरा कर लो, देन विल डिस्कस सम व्हिच आर नॉट इन योर सिलेबस बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट ओके नाउ? Yes, sir. Okay, and thank you so much. Thank you, sir.